So, hello everyone. I hope you people are doing good. We are here with the next video of the Constitutional Law UPSC Law Optional Paper Series. And in our previous lecture 1, we discussed about Constitution and Constitutionalism. This is the second lecture, which consists of the preamble of the Indian Constitution. See, this preamble is not explicitly mentioned in the syllabus, but it forms a major part of constitution, so it is important part. Also, if we talk about Indian polity, so if we talk about GS, in GS polity, it is important, and there the preamble is explicitly mentioned. So we need to uh, take a glimpse of preamble, and we need to learn as both of our paper include the preamble, and it is the main part of the same. Starting with the previous year question, before going to the topic, we'll see what are the questions asked. So the first question is, discuss each adjective to the word republic. Are they defendable in the present circumstances? So this question was asked in 2016. See, discuss each objective attached to the word republic means all the words which are included with the word republic are to be discussed, and we have to also discuss that whether they are defendable in present circumstances. Next is, what is the significance of preamble to a constitution? Bring out the philosophy of Indian polity as enshrined in the preamble of Indian constitution. So first is significance. We have to list out the significance of preamble, and the other is philosophy of Indian polity. Next is, this is the text of preamble. This preamble should be learned by you word by word. Even the commas, the colon, the semicolon, full stop, these all things are very important, and this preamble should be learned by you in this format only. This is very important for law students and for the people who are preparing for UPSC. So, this preamble should be marked up very, very properly. I'll just give a read to it, and then we'll discuss each aspect of the preamble separately. Starting with, we, the people of India, have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual in and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. So, this is the text, and this text should be in your mind properly. Coming on to the next slide, telling about the preamble. So, preamble is kind of an introductory statement. इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट मीन्स ऐसा स्टेटमेंट जो इंट्रोडक्शन देता है किसका, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है ये है, तो यहाँ पे हम इसे उस डॉक्यूमेंट का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट बोलेंगे. यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है कि फर्दर इस डॉक्यूमेंट में क्या एक्सप्लेन किया गया है, इस डॉक्यूमेंट के फर्दर फिलॉसफी क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला गया है? बिकॉज जो मेन क्रक्स है, जो मेन कोर वैल्यूज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हमें ये पढ़ के, प्रियम्बल पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि उस नेशन के क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसको बनाने वाले जो लोग थे, यानी कि जो फ्रेमर्स थे, उनका क्या इंटेंशन था, उनकी क्या हिस्ट्री थी और हिस्ट्री की वैल्यूज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमें सिर्फ इस प्रियम्बल को पढ़ के ही समझ में आ जाएंगी. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट इज, अब ये किस पे बेस्ड है, इस हिस्ट्री पे थोड़ा सा जाएंगे. तो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नाम का एक डॉक्यूमेंट हुआ करता था,
ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था ये जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। इट वाज लेड डाउन बाय जवाहरलाल नेहरू और इसे अडॉप्ट किया गया था ऑन 22 जनवरी 1947। यानी इसको अडॉप्ट करके प्रियम्बल को एक फ्रेम दिया गया था। तो दो जितनी भी फिलोसफीज और जो भी ऑब्जेक्टिव्स यूज हुए हैं दोज आर ऑल बेस्ड ऑन दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। फाइनली हमारा जो प्रियम्बल था वो अडॉप्ट कर लिया गया था इन 26 नवंबर 1949 बट इनटू इफेक्ट आया है 26 जनवरी 1950। सो नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट स्लाइड दैट इज एवोल्यूशन ऑफ द प्रियम्बल। एवोल्यूशन मीन्स कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से कहाँ कहाँ से हमने चीज़ें अडॉप्ट की फाइनल प्रियम्बल के लिए। तो पहला आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो बेसिक जो स्ट्रक्चर था प्रियम्बल का, उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया में किस तरह का गवर्नेंस चल रहा था, ये पूरा किस एक्ट पे बेस्ड था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसी को बेस बना लिया था प्रियम्बल को फ्रेम करने के लिए। अभी पिछली स्लाइड में ही भी डिस्कस्ड कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1946 में जो अडॉप्ट करा गया था तो वो दैट वाज प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। और उसमें क्या था, बेसिक इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स थे दैट वर बेसिकली लेड डाउन बाय जवाहरलाल नेहरू और उन्हीं को बेस बना के हमारा फर्दर प्रियम्बल का आगे फ्रेम तैयार किया गया। नेक्स्ट है फॉरेन इन्फ्लुएंसेस। फॉरेन इन्फ्लुएंसेस तीन थे टोटल। पहला था यूएसए का, यूएसए से हमने अडॉप्ट किया है अपनी स्टार्टिंग की लाइन दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। और ये जो वी है ये क्या बताता है, ये डेमोक्रेसी को डिनोट करता है। लाइक डेमोक्रेसी क्या कहती है, बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे जो लोग हैं वी द पीपल, यानी कि जो अथॉरिटी है एक तरह से वो डराइव कर रही है फ्रॉम दिस स्टेटमेंट और यही स्टार्टिंग वैल्यू बन गई जो कि एक डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करने वाला फैक्टर बन जाएगा। नेक्स्ट है फ्रांस से हमने क्या लिया, फ्रांस से तीन वर्ड्स लिए हैं हमने, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो इसको बोलेंगे हम सोशल जस्टिस प्रिंसिपल्स कि हमें लिबर्टी है, इक्वालिटी है एंड फ्रेटर्निटी, ये जो तीन वर्ड्स हैं ये डेराइव्ड हैं फ्रॉम फ्रांस। लास्ट आएगा आयरलैंड। आयरलैंड से डीपीएसपी डेराइव्ड है। डीपीएसपी यानी कि जो प्रियम्बल में ही कहीं ना कहीं ये छुपा हुआ है कि जितने भी हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हमेशा हमें ध्यान रखना है फर्दर आगे की जो भी लॉज जो भी रेगुलेशंस हम बनाएंगे। तो एक तरह से आयरलैंड का जो डीपीएसपी वाला फैक्टर है जो हमने आगे फर्दर पार्ट 4 में प्रॉपर लिया गया है उसका भी रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं हमें प्रियम्बल में देखने को मिलेगा। तो दिस वॉज द एवोल्यूशन ऑफ प्रियम्बल। मूविंग फॉरवर्ड वी शुड नो अबाउट द मीनिंग ऑफ द कीवर्ड्स। जो भी प्रियम्बल में स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करे गए हैं उनका क्या मतलब होगा। तो पहला आ जाएगा सॉवरन। सॉवरन, सॉवरन का मतलब क्या हुआ, सॉवरन मीन्स कि एक तरह से सुप्रीम अथॉरिटी। सुप्रीम अथॉरिटी का मतलब कि जहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं हो, जहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो तो उसको हम कहेंगे सॉवरन। बाहर का कोई कंट्रोल नहीं है और इंडिया इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, यानी कि इंडिया की अपनी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, उसके ऊपर किसी भी डोमिनियन का या किसी और एक्सटर्नल पावर का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। यहाँ इसका मतलब ये भी हुआ कि इंडिया का अपना एक लेजिस्लेचर है और उस लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो अपने लॉज खुद बना सकते हैं। तो यानी कि एक्सटर्नल जो कंट्रोल है उससे फ्री है इंडिया। यहाँ पे ऐसा कुछ हमारे ऊपर कोई भी लिमिटेशंस किसी की भी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड आएगा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या हुआ, सोशलिस्ट मीन्स यहाँ मेंशन है इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। सोशलिस्ट का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई अचीवमेंट जो कि हम सोशलिस्ट तरह से कर सकते हैं थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, मतलब कि मिक्स्ड इकोनॉमी टाइप की होगी वे बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स विल को एग्जिस्ट साइड बाय साइड। इससे क्या होगा, इकोनॉमी भी बढ़ेगी हमारी, इकोनॉमी के साथ साथ एक सोशल जस्टिस का भी फैक्टर हमें देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ पब्लिक ही है, प्राइवेट वाले सेक्टर्स को हम मौका नहीं दे रहे, और ऐसा नहीं होगा कि सारा मौका प्राइवेट वालों के पास है, पब्लिक अथॉरिटी कुछ रह ही नहीं गई। तो देयर शुड बी अ मिक्स्ड इकोनॉमी। और हम क्या करेंगे, जो भी हमारा जो इकोनॉमी है या जो भी हमारा जो प्रॉपर हमारा चल रहा है पूरा सिस्टम,
एक तरह से कह सकते हैं कि ओवरऑल सोसाइटी का जो मेंटेनेंस है, सोसाइटी का जो रोज़ का चलना है, उसमें हम दोनों सेक्टर्स को इन्वॉल्व करेंगे। दिस वर्ड which is socialist, this was added in 42nd amendment. नाउ द थर्ड वर्ड इज सेकुलर। सेकुलर का मतलब क्या हुआ? ऐसा वर्ड या ऐसा स्टेटमेंट जो ये बता दे कि हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, यानी कि हमारा कोई ऐसा रिलीजन नहीं है जो इंडिया ये कह सके कि मैं इस रिलीजन को फॉलो करता हूँ। इसका फर्दर मतलब क्या होगा? देयर इज इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स, मतलब इंडिया में जितने भी लोग हैं या इंडिया में जो भी रिलीजन्स फॉलो करे जा रहे हैं, इंडिया उन सबको सपोर्ट करेगा, उन सबको इक्वल रिस्पेक्ट देगा, सबको इक्वल प्रोटेक्शन देगा। जितनी भी लॉज हैं जो सारे रिलीजन को एक तरह से इक्वल मानेंगे। तो वहाँ पे इंडिया का अगर हम बात करें कि इंडिया का अगर कोई एक रिलीजन है तो इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। सेक्युलर मतलब कि सारे ही रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना, इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना एंड इक्वल सपोर्ट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा वर्ड दैट इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी अथॉरिटी किससे मिल रही है? फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल। विल ऑफ द पीपल हमें कहाँ से पता चलेगी? फ्रॉम द इलेक्शंस। तो इलेक्शंस होते हैं हमारे यहाँ, उससे पता चल जाएगा कि लोगों को कौन पसंद है या लोग किसको अपना लीडर देखना चाहते हैं। उसी अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कौन से हम लीडर को, कौन से रिप्रेजेंटेटिव को हम वहाँ अपने अथॉरिटी पे बैठाना चाहते हैं। तो यानी कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो एक जो डेमोक्रेसी का जो एक टर्म है, उस डेमोक्रेटिक एक वर्ड है प्रियम्बल में, वो डेमोक्रेसी को रेफर कर रहा है। नेक्स्ट इज रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ? हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, यानी यहाँ हेरिडिटरी वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ इलेक्टेड का मतलब क्या हुआ कि इलेक्शंस हो रहे हैं और वो जो इलेक्शंस हैं वहाँ पे जो लोग हैं, दोज पीपल आर डिसाइडिंग कि हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा। जैसे इन इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। तो रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ कि हेरिडिटरी कुछ नहीं चल रहा है, किंग और मोनार्क वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में लोग इलेक्शन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं वहाँ अपने गवर्नमेंट के अलग अलग ब्रांचेस में, और वहाँ उन ब्रांचेस में जाके जो फर्दर जो एक प्रोसेस है उससे हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट किया जाता है। तो देखा जाए तो द पीपल ऑफ इंडिया आर बेसिकली इलेक्टिंग द हेड ऑफ देयर स्टेट, वो खुद से चूज कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे रिपब्लिक वर्ड का यूज किया गया है। नेक्स्ट आएगा कीवर्ड्स, और 4 कीवर्ड्स हैं विच इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इन चारों वर्ड्स को अगर हम कंबाइन कर दें, लाइक इफ दीज 4 वर्ड्स आर कनेक्टेड, तो इनको हम एक और चीज़ बोल सकते हैं विच इज ऑब्जेक्टिव्स। अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो वी कैन मेंशन दीज 4 वर्ड्स। ये जो 4 वर्ड्स हैं ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, और इन्हीं 4 वर्ड्स को हम एज अ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी लेके चलेंगे। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक सुप्रीम लॉ है। उसका काम क्या है? मेंटेन द इंटीग्रिटी इन द सोसाइटी, और साथ के साथ पूरे जितने भी सिटीजन्स हैं उनमें एक तरह से यूनिटी को प्रमोट करना उसका एक काम है। यूनिटी को प्रमोट क्यों कर रहे हैं? जिससे हार्मनी बनी रहे पूरे नेशन में। अब इसके 4 ऑब्जेक्टिव्स, तो पहला आ जाएगा जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या हुआ? जस्टिस का मतलब ये कि जब हम कोई लॉ एंड ऑर्डर को सोसाइटी में मेंटेन करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले हम फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को रेफर करते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो जस्टिस देने के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? 3 तरह के जस्टिस होंगे। पहला हो गया हमारा सोशल, दूसरा हो गया इकोनॉमिक एंड तीसरा हो गया पॉलिटिकल। 3 तरह के जस्टिस हो गए। सोशल जस्टिस का मतलब क्या हुआ कि सोसाइटी में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स, किसी भी ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तभी हम सोशल जस्टिस को अचीव कर पाएंगे। अब डिस्क्रिमिनेशन किन किन ग्राउंड्स पे हो सकता है? रेस, कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन एंड एटसेट्रा। So many discriminatory points are there, and those all discrimination
शुड बी अवॉइडेड, तभी हम सोशल जस्टिस अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब कि लोगों को इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कि उनकी वेल्थ कितनी है, उनके पास कितनी इनकम है, उनका कितना इकोनॉमिक स्टेटस है, इस बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट बिल्कुल नहीं करेंगे। ऑल द पीपल आर इक्वल। उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है या उनकी इनकम क्या है, इसके बेसिस पे हम उनके बीच में भेदभाव नहीं कर सकते। तो यही हो जाएगा हमारा इकोनॉमिक जस्टिस। अगर मान लो कोई पर्सन है और दो लोग हैं और दोनों सेम पोजीशन पे हैं, ए और बी, दोनों की जो पोजीशन है कहीं पे जो वो कह सकते हैं कि अ, किसी कंपनी पे हैं इन केस, और अगर दोनों एक ही पोस्ट पे हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन करें कि मतलब उन दोनों को इक्वल पे ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बैकग्राउंड चेक करेंगे कि कौन ज़्यादा वेल्दी है या कौन ज़्यादा, किसका ज़्यादा इकोनॉमिक स्टेटस है उसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस दें, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यानी कि ऑल पीपल मस्ट गेट अपॉर्चुनिटीज़ टू अर्न फॉर देयर लिविंग। ऐसा नहीं है कि बैकग्राउंड अगर ख़राब है या बैकग्राउंड इन केस पुअर है तो हम उसको किसी अच्छी पोस्ट पे नहीं लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी उस पर्टिकुलर जॉब या उस पर्टिकुलर पोस्ट का जो प्रोसेस है उसके लिए सभी एलिजिबल हैं और सभी उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इकोनॉमिक जस्टिस हमें प्रोवाइड करना होगा। थर्ड है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो लोग हैं, ऑल द पीपल हैव इक्वल एंड फ्री एंड फेयर राइट। और फेयर राइट किस चीज़ में है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किस चीज़ में, टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़। कहीं पे भी अगर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ की बात आएगी, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे इलेक्शंस की बात है, तो इलेक्शंस में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो तो यू आर एलिजिबल टू वोट, और वोट का जो राइट है दैट इज़ फ्री एंड फेयर। तो दिस वॉज एन एग्जाम्पल टू दिस पॉलिटिकल जस्टिस। इसके अलावा और भी बहुत सारी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो कि फुलफिल कर सकता है हर पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है दैट मीन्स तभी हम इन तीन तरह के जस्टिस को अपने लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या हुआ, फ्रीडम। फ्रीडम इन द सेंस कि जैसे लोग चाहें वैसे अपनी लाइफ को रह सकते हैं, वैसे वो चूज कर सकते हैं कि उन्हें रहना कैसे है, उनके किस तरह के पॉलिटिकल व्यूज़ हैं और उनका कैसा बिहेवियर है सोसाइटी में। तो फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, तो इन सारी चीज़ों की फ्रीडम जो दी गई है उसी का मतलब हो जाएगा लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई पर्सन कुछ भी कर लेगा, ऐसा नहीं है, कुछ भी करने की फ्रीडम नहीं है। क्योंकि पर्सन, अगर हम लिमिट नहीं सेट करेंगे तो फिर कुछ भी कर लेगा इंसान, तो दैट हो सकता है कि वो एक ऑफेंस हो। तो कहने का मतलब कि पर्सन के पास ये लिबर्टी है कि वो अपनी लाइफ चूज कर सकता है कि उसको कैसे रहना है, उसके थॉट्स क्या हैं, उसका बिलीव क्या है, वो किस रिलीजन को फॉलो करे, ये सब कुछ चीज़ें वो डिसाइड कर सकता है। बट देयर आर सर्टेन लिमिट्स सेट बाय द लॉ। वो लिमिट्स किस लिए हैं, एक सोसाइटी को प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर में चलाने के लिए। ये लिमिट सेट करना भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाएगा इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब कि किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन के कुछ ग्राउंड्स हैं, दैट इज़ रिलीजन, कास्ट, सेक्स एट्सेट्रा। यहाँ बेसिक इक्वालिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई भी सेक्शन हो सोसाइटी का, उसके पास कोई भी स्पेशल प्रिविलेज उसको नहीं दी जाएगी। यानी जितने भी लोग हैं उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। ऑल द पीपल मस्ट हैव दिस इक्वल अपॉर्चुनिटी। और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ किसके लिए होंगी कि कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं है, तो आप सभी चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। सबके पास सेम आपको मौका दिया जा रहा है और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। तो एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। लास्ट वर्ड आता है दैट इज फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या हुआ, प्रोमोटिंग दी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। मतलब एक जो भाईचारा वाला फील होता है, जैसे फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड या आपका एक इमोशनल अटैचमेंट होता है अपनी कंट्री से, तो उसको हम कहते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी प्रमोट क्या करेगी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। लेकिन फ्रेटर्निटी का जो वर्डली मीनिंग है दैट इज फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। जब आप ये सोचेंगे कि हाँ ये हमारी कंट्री का पर्सन है, तो
हम और ये भाई भाई। दैट मीन्स कि एक जो फीलिंग होती है नेशंस में एक दूसरे को लेके कि ये हमारे सेम नेशन का, एक जो इमोशनल अटैचमेंट होता है अपनी कंट्री को लेके, दैट इज फ्रेटर्निटी। So these all are the kind of objectives which the preamble engraves in itself, और यही further constitution में जाके further expand हो जाते हैं, और पूरा constitution ही basis इसका यही है कि ये सारे objectives fulfill होने चाहिए। नेक्स्ट आता है ड्राफ्टिंग ऑफ द प्रियम्बल। प्रियम्बल को ड्राफ्ट कैसे किया गया था? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पे भी है, ड्राफ्टेड द प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमिटी में ड्राफ्टिंग कमिटी को चेयर किसने किया था, दैट मीन्स हेड किसने किया था, दैट वाज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और इन्होंने ही क्या किया था, वहाँ पे डिबेट हुई थी इसकी नेसेसिटी को लेके कि ऐसा प्रियम्बल जैसा कुछ होना चाहिए, प्रियम्बल मस्ट बी द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं से ये आया और वहीं से वर्डिंग ऑफ द प्रियम्बल को डेराइव किया गया था। फाइनली जो हम पहले भी स्लाइड्स में देख चुके हैं कि नवंबर 26 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख कर तैयार हो गया था, तो उसको हम अडॉप्ट कर लिया था। प्रियम्बल भी उसी दिन ही अडॉप्ट हो गया था। एंड बट कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि इफेक्ट में आया है 26 जनवरी 1950 को, तो सेम प्रियम्बल क्योंकि उसका पार्ट है, तो हम प्रियम्बल के लिए भी यही डेट रेफर करते हैं, दैट ऑन 26 जनवरी 1950 इट वाज अडॉप्टेड। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द प्रियम्बल। तो टोटल 4 कंपोनेंट्स हैं प्रियम्बल के। उन 4 कंपोनेंट्स में फर्स्ट है हमारा सोर्स ऑफ अथॉरिटी। सोर्स ऑफ अथॉरिटी मतलब क्या हुआ कि प्रियम्बल को अथॉरिटी कौन दे रहा है, प्रियम्बल को अथॉरिटी देने वाला कौन है? तो प्रियम्बल को अथॉरिटी कौन दे रहा है? पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया क्यों कहा गया? क्योंकि स्टार्टिंग ही यहीं से हुई है, द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इंडिया के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि प्रियम्बल को एक तरह से इंडिकेट कर रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो अथॉरिटी है दैट इज पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट कैसा होगा? हमारा प्रियम्बल ही बता देता है कि इंडियन स्टेट का नेचर किस तरह का होगा, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यानी ये जो 5 वर्ड्स हैं ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इन पांचों वर्ड्स का जो मतलब है दैट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। थर्ड आ जाएगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स हमने अभी अभी कवर किया, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये जो 4 वर्ड्स हैं दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स स्टेटेड बाय द प्रियम्बल। प्रियम्बल ही बताएगा कि हमें कैसे जस्टिस सिक्योर करना है, कैसे लिबर्टी प्रोवाइड करनी है, इक्वालिटी देनी है हमारे सारे सिटीजन्स को, और फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना है जिससे कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन बन पाए। लास्ट आ जाएगा लास्ट पार्ट विच इज date of its adoption. Date of its adoption is 26th November 1949. So these are the 4 components of the preamble. कभी भी पूछा जाए कि components क्या होते हैं, so these 4 are the components of preamble. Next आता है हमारा amendments of the preamble, कि amendment कब कब हुआ और उन अमेंडमेंट्स में क्या क्या चेंजेस आए थे। तो अभी तक देखा जाए सिर्फ एक ही बार प्रियम्बल को अमेंड किया गया है विच इज़ 42nd अमेंडमेंट 1976। ये तब आया था आफ्टर द केशव नंदा भारती केस। ठीक है, इस केस के बाद इस अमेंडमेंट को लाया गया था और ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चेंज लेके आना है तो हम वो किस आर्टिकल के अंडर ला सकते हैं? आर्टिकल 368। 368 कहता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट वो क्या बताता है कि बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं करना है, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं खराब होना चाहिए। इसलिए प्रियम्बल को अभी तक सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है, वो भी ये 3 चीज़ें एडअप करी गई हैं। अब एडअप कहाँ कहाँ करी गई हैं? सोशलिस्ट और सेक्युलर के, सोशलिस्ट को और सेक्युलर को सॉवरन और डेमोक्रेटिक के बीच में ऐड किया गया है। पहले था यूनिटी ऑफ द नेशन, उस यूनिटी ऑफ द नेशन में एक इंटीग्रिटी वर्ड ऐड कर दिया गया और उसको बना दिया गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। करेक्ट? तो ये यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बन गया। तो ये कुछ अमेंडमेंट हुआ है प्रियम्बल में। नेक्स्ट आते हैं स्टेटस ऑफ द प्रियम्बल, कि अगर अभी की बात करें तो प्रियम्बल का क्या स्टेटस है।
पहले क्या चेंजेस हुए जो अभी वाला स्टेटस हम देखते हैं। तो कुछ सुप्रीम कोर्ट में केसेस आए हुए थे जिनसे हम बात करते हैं कि प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। कई बार इस चीज़ पे क्वेश्चन हुआ कि वेदर दिस प्रियम्बल इज पार्ट और नॉट। पार्ट होने पे बार बार क्वेश्चन मार्क लग जाता था। सबसे पहली बार एक केस आया, बेरुबारी केस। बेरुबारी केस आया था आर्टिकल 143 सब क्लॉज 1 को लेके, जो कॉन्स्टिट्यूशन का था, और वो भी था एक तरह से इंडो पाकिस्तान अग्रीमेंट को लेके और उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेके। तो वहाँ पे बेरुबारी यूनियन जो था उसके रिगार्डिंग ये केस था। देयर वर बेंच ऑफ 8 जजेस। वहाँ पे क्या था कि प्रियम्बल को क्या बोला गया कि दैट इट इज़ द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स। मतलब कि जो बना रहे थे, फ्रेम कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को, वो वहाँ से ये प्रियम्बल पढ़ के हमें ये तो पता चलता है कि उस टाइम पे मेकर्स के दिमाग में या फ्रेमर्स के दिमाग में क्या चल रहा था, बट इसको हम इसका पार्ट नहीं बता सकते। यानी कि उन्होंने बोला प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन का अगर पार्ट नहीं है तो यानी कि कोर्ट ऑफ लॉ में उसको लेके नहीं आ सकते। इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो सारे जजेस ने फाइनल जो डिसीजन था वो यही था दैट प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद एक नेक्स्ट केस आया। नेक्स्ट केस वॉज केशव नंदा भारती केस 1973 में। केशव नंदा भारती केस क्या हुआ, देयर वर 13 जजेस की जो बेंच थी वो बैठी एक रिट पिटिशन को सुनने के लिए। रिट पिटिशन में क्या था कि उस रिट पिटिशन में जो केस था उसका क्रक्स मैं बनाती हूँ। लास्ट में ये हुआ, कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल विल नाउ बी कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसको बता दिया गया कि वो पार्ट है। यानी पहला वाला जो डिसीजन था वो डिसीजन अपहेल्ड करते हुए सेकंड वाला डिसीजन अब आ जाएगा मेजर पे, दैट इज प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट प्रियम्बल को ये बताया गया कि इसके पास कोई ऐसा सुप्रीम पावर नहीं है, ना ही ये ऐसा कोई सोर्स है जो किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन लगा रहा हो या किसी तरह का प्रोहिबिशन लगा रहा हो। बट क्योंकि इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्टैट्यूट्स हैं, उसके जो प्रोविजंस हैं, उनको इंटरप्रेट करने में हमें प्रियम्बल की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए दिस कैन बी कंक्लूडेड एज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्ट के साथ साथ इन्होंने इसको दे दिया दैट इट इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो बेसिक, जैसे हम कोई भी मान लो रिसर्च पेपर लिखते हैं तो उसका एक एब्स्ट्रैक्ट होता है ना। एब्स्ट्रैक्ट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसको पढ़ के हमें समझ आ जाता है कि फर्दर इस फर्दर पेपर में क्या चीज़ें डिस्कस करी गई हैं। वैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन के साथ प्रियम्बल है कि वो एक तरह का प्री फेस है, एक तरह का इंट्रोडक्शन है कि फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन में किन टॉपिक्स पे बात की गई है। इसके बाद एक और केस आया था इसमें, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया। Union Government versus LIC of India. This case was in 1995. प्लीज़ मेंशन दिस ऑल्सो। 1995 में एक केस आया था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से यही बोला था दैट प्रियम्बल इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको हम डायरेक्टली इन्फोर्स नहीं कर सकते इन द कोर्ट, लेकिन हम इसको अभी इंटीग्रल पार्ट मानते हैं। तो इंटीग्रल पार्ट मान रहे हैं, यानी वही केशव नंदा भारती वाला जो केस था उसमें भी यही बोला गया था कि दैट इट इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको हम अमेंड भी कर सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट बी ऑल्टर्ड। उसको चेंज नहीं करना है। बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज या कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा। उसी चीज़ को फर्दर ले जाते हुए 1995 वाले केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला दैट इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम उसको डायरेक्टली एनफोर्स नहीं करेंगे इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट आता है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल ज़रूरी क्यों है? तो प्रियम्बल का ज़रूरी होना ऐसा क्यों है? बिकॉज इट एक्ट्स एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल। यानी मैंने पहले भी बताया कि जब स्टार्टिंग में ही हमें सारे ऑब्जेक्टिव्स और सारे जो कीवर्ड्स हैं, वो सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, वो जो कुछ भी बताते हैं वो क्या काम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, एक तरह से गाइडिंग प्रिंसिपल का काम करेंगे कि स्टेट को कैसे काम करना है या सिटीजन्स को किस तरह से अपना बिहेवियर रखना है, कैसे उनको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, कैसे फर्दर लॉज बनेंगे जिसके लिए DPSP है। तो ये सारी चीज़ें प्रियम्बल से ही निकल के आएंगी।
declares the fundamental values and aspirations of India. फंडामेंटल वैल्यूज इन द सेंस कि कैसा नेचर है इंडिया का, इंडिया की किस तरह की फिलॉसफी है, वो प्रियम्बल पढ़ के ही समझ में आ जाता है। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड देयर इंटेंट। इंटेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय उसके मेकर्स का जो इंटेंशन था उसी को रिफ्लेक्ट करते हुए प्रियम्बल भी बताता है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल फर्दर प्रोविजंस होंगे उसके, और उनका उन प्रोविजंस को लगाने का इंटेंशन क्या है। जैसे फ्रीडम प्रोवाइड की, तो फ्रीडम प्रोवाइड की, तो फ्रीडम के साथ साथ एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है, उसके साथ साथ क्या है, रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो वो रेस्ट्रिक्शंस क्यों हैं, इसका भी एक इसके पीछे भी एक कुछ आइडिया हो सकता है। तो वो उसका इंटेंशन समझने के लिए वी शुड एक्चुअली रेफर टू द प्रियम्बल एंड फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन दैट एडिशन। नेक्स्ट इज सर्व एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्योंकि जैसे एक बुक है, बुक का जो स्टार्टिंग पेज होता है दैट इज द इंट्रोडक्टरी पेज, उसको हम प्रीफेस भी बोलते हैं, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो वो एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड बन जाएगा, तो आईडी कार्ड हो जाएगा। तो वही इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए कहा जाता है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन जो फुल एक डॉक्यूमेंट है उसका एक समरी काइंड ऑफ हमारा बन जाएगा प्रियम्बल। embodies the core values that guide India's democracy। core values in the sense कि उसके जो इंडिया के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो इंडिया की इतनी ग्लोरीफाइड हिस्ट्री है, इंडिया के जो फ्रेमर्स हैं उनका जो इंटेंशन है, ये सारी चीज़ें क्या है, जो प्रियम्बल है वो अपने साथ लेके चलता है और अपने टेक्स्ट में ही रेफर करता है कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन। तो यहाँ से हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ डन। अब नाउ वी कम टू दी क्वेश्चंस। ओके, सो नाउ विल डिस्कस कि जो दो क्वेश्चंस हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे उनका मेंस आंसर हमें कैसे फ्रेम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 वाज टू डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच टू द वर्ड रिपब्लिक। तो रिपब्लिक के पहले और कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? दोज आर सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, और लास्ट आता है रिपब्लिक। आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस? कैसे डिफेंडेबल होंगे आज के टाइम पे? आज भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं, या अप्लाई होते हैं या नहीं होते हैं? बिकॉज 1950 में ये बना था, 1950 से अभी तक इट्स अ लॉन्ग पीरियड। तो क्या अभी ये अप्लाई करेंगे या नहीं करते हैं? तो सबसे पहले वील स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट होगा। इंट्रोडक्शन में वील सी, इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि क्या क्या व्हाट इज़ प्रियम्बल। सबसे पहले तो प्रियम्बल की ही बात होगी कि प्रियम्बल क्या है। प्रियम्बल के साथ साथ हम ये बताएंगे कि प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया है। और ईच ऑफ दीज एडजेक्टिव्स, इनके अपने अपने प्रिंसिपल्स हैं, गाइडिंग गवर्नेंस के लिए इनको यूज़ किया गया है, और ये जो लोगों की एस्पिरेशन है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। बट क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, कंटेम्प्रेरी टाइम्स में इन इन सारे वर्ड्स का क्या इनमें वैल्यूज़ में चेंजेस आया है, नहीं आया है, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अब हमें एक-एक वर्ड को लेके चलना है। जैसे स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, सॉवरेन को लेके। अब सॉवरेन का हम पहले मीनिंग एक्सप्लेन कर देंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेन? यानी इंडिया इज फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल फोर्सेस, किसी भी तरह का डोमिनियन नहीं है। इट हैज़ द कंप्लीट ऑटोनॉमी, चाहे वो उसके इंटरनल अफेयर्स हो चाहे वो उसके एक्सटर्नल अफेयर्स हो। मीनिंग एक्सप्लेन करने के बाद हम अब नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, सब पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं, दैट इज दी उसकी डिफेंसिबिलिटी, कि आज के टाइम पे हम उसको डिफेंड कर पा रहे हैं या नहीं। तो अगर देखें इंडिया के पास क्या आज भी सॉवरेन स्टेटस है? तो यस, इंडिया मेंटेन इट्स सॉवरेनिटी। वो डिसीजन मेकिंग कर सकती है, फॉरेन पॉलिसी में हो या किसी भी चीज़ में हो, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों ही अफेयर्स में वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। सेकंड पॉइंट हो जाएगा, जैसे इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज। कई सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, ट्रेड रिलेशंस हैं अलग अलग इकोनॉमीज़ के साथ। तो वहाँ पे इंडिया का डिसीजन खुद का होता है वेदर उसको पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, उसकी पार्टिसिपेशन होगा, डिपेंडेंसी होगी नहीं होगी, ये सब कुछ इंडिया खुद से डिसाइड करता है। देयर इज़ नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कि इंडिया को क्या डिसीजन लेना है। नेक्स्ट हो जाएगा, कोई ऐसा मान लो कि कोई इश्यूज़ है लाइक साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं या कोई बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है, तो वहाँ पे चैलेंज ज़रूर होता है सॉवरेनिटी का, बट इंडिया उसको अच्छे से डिफेंड कर रही है, अभी तक डिफेंड करती आई है। तो सॉवरेन वाला पार्ट अप्लाई हो गया। नेक्स्ट आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब हमने पहले ही पढ़ लिया, 3 तरह के हमारे जो
सोशलिस्ट मतलब कि जो जस्टिस, जो सोशल जस्टिस हमें प्रोवाइड करा जाएगा, जो इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रोवाइड करी जाएगी, या जो वेलफेयर ओरिएंटेड गवर्नेंस हमें दिया जाएगा, दैट कम्स अंडर द सोशलिस्ट वार। यानी एक तरह से सोसाइटी जो है उसको मेंटेन करके चलना है। अब नेक्स्ट पॉइंट कि उसकी डिफेंसिबिलिटी एक्सप्लेन करना है। डिफेंसिबिलिटी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स को मेंशन करके। वेलफेयर स्कीम्स कैसे? जैसे बहुत सारे फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे गरीब कल्याण योजनास हैं, मनरेगा है। इन सारे जो वेलफेयर स्कीम्स हैं ये किसके लिए बनाए गए थे? जिससे कि हम अलाइन कर सकें सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स से। तो सोसाइटी को एक पैरेलल पाथ पे लाने के लिए ये सारी वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाती हैं, जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके, सोसाइटी को फ़ायदा हो सके। फिर सेकंड पॉइंट में मेंशन कर सकते हो, जैसे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हो रही हैं। इन डिस्पैरिटीज़ को कम करने के लिए कई बार प्राइवेटाइज़ेशन का जो कंसर्न है वो आता है, और इस प्राइवेटाइज़ेशन के थ्रू वो बनाना चाहते हैं कि एक पैरेलल फॉर्म पे हमारे सारे भी सिटीज़न्स, या जो भी एक मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको हम थोड़ा-सा अपलिफ्ट कर सकें। नेक्स्ट आ जाएगा सेक्युलर। सेक्युलर मतलब, अब देखो ये सॉवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया। सेकुलर मतलब कि कोई एक रिलीजन नहीं है, सारे रिलीजन हमारे इक्वल हैं, तो सबके पास अपनी रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए, और किसी एक रिलीजन को हम प्रमोट नहीं करेंगे, सभी रिलीजन बराबर हैं। डिफेंसिबिलिटी तो आज भी वही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क अभी भी यही गारंटी करता है कि रिलीजियस फ्रीडम सबके पास है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो जितने भी ये कम्युनल टेंशन्स हो जाते हैं, या कई बार पॉलिटिक्स में भी रिलीजन आ जाता है, कई बार डिबेट होने लगती है पर्सनल लॉज पे, तो यहाँ पे इंडिया का जो एक सेकुलर वाला जो पार्ट है वही अपलिफ्ट करता है कि रिलीजियस टॉपिक्स जो हैं वो इंडिया के, जो कह सकते हैं इंडिया का जो एक सेकुलर पार्ट है उस पे ये हावी नहीं हो पाते। सेकुलरिज्म इज़ ऑन द टॉप, तो किसी एक रिलीजन से एक इस इंडिया नेशन को हम कवर नहीं कर सकते, या कवर आज भी नहीं होता है। जुडिशरी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि कितना भी पॉलिटिकल फंडा चल रहा हो, कि कुछ भी चल रहा हो, बट जुडिशरी ऑलवेज मेंटेन्स दी सेक्युलरिज्म। जुडिशरी कभी भी आज तक नहीं हुआ कि उसने किसी रिलीजन को प्रमोट किया हो और किसी रिलीजन को उसने बैकफुट पे लेके आया हो। सो ये आज भी डिफेंडेबल है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ कि वहीं वेयर द पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स एंड एंजॉय देयर फंडामेंटल राइट्स। डिफेंसिबल कैसे है? क्योंकि रेगुलर इलेक्शंस आज भी होते हैं, हमारी जुडिशरी अभी भी इंडिपेंडेंट है, और एक वाइब्रेंट मीडिया भी है जो कि डेमोक्रेसी को, ये सब लोग मिलके डेमोक्रेसी को क्या रेनफोर्स कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ चैलेंजेस मिलते हैं, जहाँ पे प्रेस की फ्रीडम के बारे में बात होती है, तो ये सब क्या है, एक तरह से डेमोक्रेसी को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे कोई भी सबके पास एक फ्रीडम है कि वो अपना स्पीच दे सकता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके पास, फ्रीडम ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप सब है। तो ये आज भी आज भी देखा जाए तो प्रेजेंट सिनेरियो में भी लाए करेगा। नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब कि कोई हेरिडिटरी मोनार्क नहीं है, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। इंडिया में अभी भी जो लीडर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाता है थ्रू सम डेमोक्रेटिक मीन्स, यानी कि रिपब्लिक जो एक टर्म है वो अभी भी मेंटेन करता है। कई बार क्या होता है, बहुत सारी अलग अलग पार्टीज होती हैं, इसी वजह से कंसंट्रेशन जो है वो एक ही हाथ में ना चला जाए, इसी वजह से थोड़ा सेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी एक तरह का एसेंस बन जाएगा रिपब्लिक का। लास्ट, यहाँ तक हमारा आंसर हो गया। अब जब भी हम आंसर को एंड करते हैं तो हम कंक्लूजन ज़रूर मेंशन करते हैं। कंक्लूजन क्या कहेगा कि ये जो एडजेक्टिव्स हैं, दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनली इंटैक्ट, बट कई बार इनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो चैलेंजेस फेस करता है। अगर हमें इनके इम्प्लीमेंटेशन को प्रॉपर कराना है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करें, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को और ज़्यादा प्रमोट करें, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करें, जिससे कि हम इन आइडियल्स को और ज़्यादा डिफेंडेबल बना सकें अपनी इस कंटेम्प्रेरी इंडिया में, यानी कि जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें सबसे पहले
सेम इसमें भी हम इंट्रोडक्शन देंगे कि व्हाट इज़ प्रीएम्बल, प्रीएम्बल का क्या रोल है, लाइक इट इज़ द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इट रिफ्लेक्ट्स द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। ये एक फाउंडेशन है गवर्नेंस का। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इसमें जो वेरियस जो ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, दैट इज फॉर्मिंग द बेडरॉक ऑफ कंट्रीज डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। ये दिस वुड बी द बेसिक इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट इसमें हेड आ जाएगा सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिएम्बल, क्योंकि पहला पार्ट क्वेश्चन का यही मांग रहा है दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में हम कुछ हेड्स देंगे, जैसे फर्स्ट वुड बी सोर्स ऑफ अथॉरिटी। सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर डराइव करता है वो डराइव करेगा फ्रॉम इट्स पीपल। तो पहला हो जाएगा सोर्स ऑफ अथॉरिटी पीपल। नेक्स्ट है गाइडिंग स्पिरिट। गाइडिंग स्पिरिट क्यों? क्योंकि इट एक्ट्स, जो प्रियम्बल है वो एक तरह से इंटरप्रिटेटिव टूल का काम करता है फॉर दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। मान लो जुडिशरी के आगे कुछ ऐसी एम्बिग्विटीज आ जाती हैं जहाँ उसको समझ नहीं आता है कि इस प्रोविजन का मतलब क्या है, तो वहाँ पे प्रियम्बल काम करता है, जो ये बताएगा इंटेंशन क्या थी मेकर्स की, और एक तरह से इंटरप्रिटेटिव टूल का काम करेगा उस एम्बिग्विटी को दूर करने के लिए। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द स्टेट। नेचर मतलब वही जो हमारे 5 कीवर्ड्स हैं, दैट इज सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेक्स्ट आ जाएगा लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए? 4 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स भी एक तरह से प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस फॉर्म करेंगे। लास्ट हेड वुड बी रिफ्लेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मतलब 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था उसने 3 वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। तो इनका इवॉल्विंग नेचर है, यानी कि हम चेंजेस ला सकते हैं बट कीपिंग इन माइंड कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हिंडर ना करे। अब जो क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट आता है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या मांग रहा है? फिलॉसफी। फिलॉसफी क्या होगी? तो ये जो वर्ड्स अभी हमने पहले एक हेड में डिस्कस किए थे, यही सारी फिलॉसफी फॉर्म हो जाएगी कि इंडियन स्टेट की एक्चुअल फिलॉसफी इंडियन पॉलिटी की क्या है। तो पहला हो गया सॉवरेंटी, यानी इंडिपेंडेंट, डिसीजन मेकिंग जो है फ्री है, फ्री फ्रॉम ऑल द एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्सेज। तो यानी कि अपने जितने भी अफेयर्स हैं, अपने जितने भी मैटर्स हैं, उसमें इंडिया खुद ही गवर्न करेगी। नेक्स्ट है हमारा सोशलिस्ट, यानी सोशो इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए हम इनइक्वालिटीज़ को दूर कर रहे हैं, अलग अलग प्लानिंग करते हैं जिससे कि जितनी भी इनइक्वालिटीज़ हैं सोसाइटी में इसको हम कम कर सकें। सेक्युलरिज्म, मेंटेनिंग द रिलीजियस न्यूट्रलिटी। स्टेट का कोई एक सिंगल रिलीजन नहीं है, जितने भी रिलीजन्स हैं दोज आर ऑल इक्वल, और इक्वल प्रोटेक्शन उनको दी जा रही है। डेमोक्रेसी मीन्स इस्टेब्लिशिंग अ गवर्नमेंट जिसको लोग इलेक्ट करें, मोनार्की ना हो, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो लोगों का एंड प्रॉपर पार्टिसिपेशन हो, दैट इज डेमोक्रेसी। रिपब्लिकनिज्म मतलब कि इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट हो, कोई हेरिडिटरी पर्सन ना हो, कोई हेरिडिटरी मोनार्क ना हो, जिससे कि जो लीडरशिप अपॉर्चुनिटी है वो सबको मिल पाए, जो चाहे आके अपने आप को एज अ नॉमिनी बोल सकता है और वो फर्दर हेड ऑफ द स्टेट बनने के लिए खुद को एज अ मेंबर स्टैब्लिश कर सकता है। अब ये लोगों के ऊपर है वो उसको इलेक्ट करते हैं या उसको नहीं इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा जस्टिस। जस्टिस के हमने 3 पार्ट पहले ही देख लिए, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, वही हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट आएगा लिबर्टी। लिबर्टी इन टर्म्स ऑफ कि आपके पास फ्रीडम है थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की। बेसिस क्या हो जाएगा? एक तरह से लिबरल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स इक्वल स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ को हम प्रमोट करें, डिस्क्रिमिनेशन कम से कम हो, और इसी के साथ साथ एक जो अफर्मेटिव एक्शन होता है जिसको हमें मार्जिनलाइज्ड करना है उसके ऊपर भी ध्यान दें। फ्रेटर्निटी मीन्स फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, जिससे कि नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को हम फर्दर एंश्योर कर सकें। लास्ट एंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे सॉरी एंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन किससे होगा? कंक्लूजन से। कंक्लूजन में हमें क्या मेंशन करना है कि प्रियम्बल में सारी फिलोसफीज हैं जो इंडियन पॉलिटी को एक तरह से रेफर करती हैं या एक तरह से उसका ग्लिम्स देती हैं, और इसको ब्लेंड करना सारे डेमोक्रेटिक आइडियल्स के साथ इम्पॉर्टेंट है फॉर द सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। बट
जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे धीरे धीरे करके हम चेंजेस देखने को आ रहे हैं, वैसे वैसे हमें ज़रूरत है कि इसका जो गाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन हो और जो गवर्नेंस हो इंडिया में, दैट शुड बी इन कंप्लायंस विद द प्रियम्बल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ से हमारा आंसर कंप्लीट होता है। अब देखो, यू विल सी द चेंज कि बिफोर स्टडिंग द टॉपिक यू हैव वेरी लिटिल आइडिया कि इस आंसर को कैसे फ्रेम करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे फ्रेम होगा। बट आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक यू नो कि इस आंसर में क्या क्या हेड्स एटलीस्ट मेंशन करे जा सकते हैं। रेस्ट आंसर को एक प्रॉपर फ्रेमवर्क देने के लिए वी नीड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द की। बट पढ़ने के बाद एटलीस्ट ये आइडिया तो लग जाता है कि आंसर में लिखना क्या है। So we are done with this video, we are done with this lecture. In the next lecture we'll discuss about the fundamental rights. Hope this video helps for you. Thank you for watching.